پاکستان کی سیاست میں اگلے 10-12 دنوں میں کیا ہوگا؟ کون ہوگا نگران وزیر اعظم؟ جب چڑیا والے کی بات نہ بنی تو چڑیا والے نے اپنی بیگم کا نام دے دیا۔ اور دو شخصیات اہم ہیں، جناب میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری صاحب ایک بڑی گہری کھیل کھیل رہے ہیں۔ وزیر اعظم تقریباً طے ہو چکا ہے، جو کہ باہر کی طاقتوں کے پسندیدہ ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں فاروق سہیل گوہندی، اپنے پروگرام پولیٹیکل کینوس کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست میں اگلے 10-12 دنوں میں کیا ہوگا؟ کون ہوگا نگران وزیر اعظم؟ کتنے عرصے کے لیے ہوگا اور کیسا سیاسی ڈھانچہ ہوگا؟ پاکستان کا شاید ہر فرد اس کے لیے بےتاب ہے سننے کے لیے، کیونکہ پاکستان کا جو سیاسی، معاشی، اقتصادی بحران ہے، لوگوں کو ایک امید ہے کہ شاید انتخابات کے بعد پاکستان سنبھل جائے۔ کیا پی ڈی ایم اہم ہے؟ کیا حکومت اور اپوزیشن اہم ہے؟ اپوزیشن کے لیڈر تو جناب راجہ ریاض ہیں، میرا خیال ان کو کچھ بھی نہیں معلوم، حالانکہ ان کو مرضی کے بغیر وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ لیکن دو شخصیات اہم ہیں، دو پولیٹیکل فورسز اہم ہیں سیاسی حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور دو شخصیات اہم ہیں، جناب میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری۔ میاں نواز شریف صاحب نے تو چاہا تھا کہ ان کے خاص الخاص جناب اسحاق ڈار وزیر اعظم ہو جائیں، اور وہ اس کے لیے بہت سیریس تھے، لیکن وہ نہیں مانے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ حکمران پارٹی کا کوئی اہم شخص اور خاندان کے فرد ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ بہت کوشش ہوئی کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہو جائیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی کوشش کی جن کی چڑیا بڑی اڑتی ہے، اور چڑیا والے لندن پہنچے، میاں نواز شریف سے ملے، اور میاں صاحب تیار بھی تھے کہ چڑیا والے وزیر اعظم ہو جائیں، لیکن پھر وہ نہیں مانے، کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے فیصلہ ایک کر کے رکھ دیا۔ آصف علی زرداری اقتدار کی سیاست، حکمرانی کی سیاست کو خوب جانتے ہیں، وہ تصادم پر یقین نہیں رکھتے، وہ لمبا سوچتے ہیں، لمبا کھیلتے ہیں، وہ 2020 نہیں کھیلتے، وہ تصادم کیے بغیر اوپر والوں کی اور دنیا سے باہر اوپر والوں کی مرضی کی خواہش پر چلیں گے، اور ان کے تعلقات بھی دونوں اوپر والوں سے بہت اچھے ہیں۔ جب چڑیا والے کی بات نہ بنی تو چڑیا والے نے اپنی بیگم کا نام دے دیا جگنو کا، ان کا نام جگنو محسن ہے۔ تو یہ تو ایک سراسیمگی پھیل گئی کہ یہ کیسی حکمران جماعت ہے جو اپنے گھر کے ایسے یا اپنے قریبی لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد میاں صاحب بہت ڈپریس ہیں میری اطلاعات کے مطابق، اور انہوں نے کہا یہ جو سیانہ ہے، سیانہ انورٹڈ کوما میں اپنے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، اور میری یہ بھی اطلاعات ہیں، میری معلومات ہیں بالکل فرسٹ ہینڈ، اسی قسم کی لڑائی ہے گھر کے اندر جو ظہور لائی روڈ پہ لڑائی خواتین اور بچوں کی ہے۔ جب دولت اور اقتدار تیسری نسل میں جاتا ہے تو ہر تیسری نسل کا بچہ یہ کہتا ہے میرے باپ کا زیادہ کنٹریبیوشن تھا، میرے دادا کا زیادہ کنٹریبیوشن کے ساتھ میرے باپ کا زیادہ کنٹریبیوشن تھا۔ اس لیے لڑائی یہاں بھی ہے جس کا نام اتفاق ہے۔ اور سیانے کو بڑے میاں صاحب لندن میں بہت خوش نہیں ہیں، کیونکہ میاں صاحب کا خواب پورا نہیں ہوا، پاسپورٹ بھی بنا، پاکستان نہیں آ سکے۔ وہ جو رستہ بنانا چاہ رہے تھے، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت مل گئی، میرا خیال ان کا خواب پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب ایک بڑی گہری کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ اپنے تئیں ایسی سیاست کرنا چاہتے ہیں انتخابات سے پہلے کہ وہ اپنے طور پر اپنے آپ کو ایک سیکیور مقام پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ 80+ سیٹیں لے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے جی ڈی اے کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اسی لیے پیر پگاڑا صاحب ان کے ذہن میں تھا، اور انہوں نے پیش بھی کیا وزارت عظمیٰ کے لیے نگران، اور وہ قبول نہیں ہوا۔ امکان ہے وہ قبول بھی ہو جائے، لیکن ایک ایسا شخص پاکستان کا نگران وزیر اعظم تقریباً طے ہو چکا ہے، اسلام آباد کے ایک سیف
हाउस में क़याम पज़ीर है और जो अंदर की ताकत के मराकज़ हैं और बाहर का जो बड़ा ताकत का मरकज़ है, उन दोनों की मर्ज़ी से हैं। और वो साहब जो हैं वो आसिफ अली जरदारी के करीब हैं और आसिफ अली जरदारी साहब को उन पर एतराज़ भी नहीं है, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साहब से कुर्बत के अलावा उनका एक ऐसा शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो उस आलमी मुआशी अदारों को ज़रूर उनके मफादात को प्रोटेक्ट करेंगे जो पाकिस्तान को $2 अरब जिसने अभी कर्जा दिया है, और वो आसिफ अली जरदारी के तकरीबन पसंदीदा है। लेकिन इस दौरान भी आसिफ अली जरदारी कोशिश कर रहे हैं कि पीर पगाड़ो जो हैं वो पाकिस्तान के कायम मकाम या निगरान वज़ीर आज़म हो जाए। ये तो है निगरान वज़ीर आज़म बनने का जो मंसूबा है, जो खेल जारी है। इस दौरान इमरान खान के बारे में मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक सिस्टम के अंदर अगर 3 फिल्टर हैं तो 2 फिल्टर इमरान खान की हमायत में अभी भी हैं। वो बहुत स्क्रू करेंगे, टाइट स्क्रूइंग करेंगे इमरान खान साहब की, जितनी भी करेंगे, लेकिन इमरान खान ख़त्म नहीं होने के, इसलिए कि उनकी 2 ताकतें हैं। अब इमरान खान कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ और शायद निगरान हुकूमत से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, 90% इस बात का इम्कान है। दूसरा, उनका वोटर जो इंटैक्ट है, इसलिए इमरान खान का वजूद पाकिस्तान की सियासत पर एक लटकती तलवार है सिस्टम के लिए। इसीलिए घबराए हुए हैं सबसे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब। वो सियाने पर ज़्यादा खुश नहीं हैं हमारे वज़ीर आज़म पर। आसिफ अली जरदारी बिल्कुल इत्मीनान से हैं और वो चाहते हैं कि इंतखाबात जल्दी हों, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि इक़्तिदार उनके घर में ही किसी तरह रह जाए। वज़ीर आज़म तकरीबन तय हो चुका है, जो कि बाहर की ताकतों के पसंदीदा हैं, खुसूसन आलमी मालियाती अदारों के, और पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ का उनको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल चुका है। समझे वो प्री प्राइम मिनिस्टर सिचुएशन में दाखिल हो चुके हैं, उनको जो सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन अब बात यह है कि क्या 60 दिन में इंतखाबात होंगे, 90 दिन में, इसकी कोई अभी यकीनी बात नहीं है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे। कोशिश होगी कि इंतखाबात साल 1.5 साल ना हो। ये कोशिश में जरदारी साहब को भी कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि जरदारी साहब तसादुम पर यकीन नहीं रखते, यही उनकी ताकत है। वो कंप्रोमाइज़ दर कंप्रोमाइज़ पर यकीन रखते हैं। वो ऐसी हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं जो सामने हो और उसका हल निकालने के लिए वो इंतज़ार करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन जो नाकामी हुई इस PDM हुकूमत की सबसे बड़ी, वो अहम तरीन नाकामी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर पंजाब में कम हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साख बहुत मुतासर हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई साख मुतासर नहीं हुई। वो ऐसी पोजीशन में है कि अपना वोट वो जैसे भी इलेक्टेबल के ज़रिए बनवाएं, अपने वोट को मैनेज करें, जैसे भी उनका वोट कम नहीं हुआ, असम्बलियों में तादाद बढ़ी है। तीसरी बात, ये जो अदम इस्तेहकाम पार्टी है, ये एवं पार्टी नहीं है, इसको रखा गया है और इसको PTI के लिए नहीं रखा जाएगा, इसको मुस्लिम लीग नून के लिए रखा जाएगा। ये वो किंग्स पार्टी है जो फैसला करेगी, और ये एक बड़ी दिलचस्प पार्टी है कि इसके पास ना वर्कर हैं, ना पार्टी है, ना वोटर है, लीडर ही लीडर है। लेकिन ये ऐसी पोजीशन में है पाकिस्तान के इस फ्यूडल, ट्राइबल, पैटी बुर्जुआ समाज में कि ये मैनेजेबल हो सकते हैं इंतखाबात में, इनमें से 10-12 सीटें निकलने के लिए। इसलिए ये तलवार जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर पर लटकती रहेगी। लेकिन अगले 10-12 दिनों में नई हुकूमत बनने जा रही है। जैसे मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था कि मुझे तो नवंबर में इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे, मेरी इतलात है फरवरी तक, और इम्कान है बढ़ भी सकता है। पाकिस्तान में कौन पूछता है आइन को। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैंने तुर्की के साबिक़ वज़ीर आज़म बुलंद एजवत को बुलाया पाकिस्तान में 1993 में। उस वक्त वो हुकूमत में नहीं थे, उसके बाद फिर वो 2000 में वज़ीर आज़म बने, 98 में सारी वज़ीर आज़म बने। तो साईं बुलंद एजवत
वज़ीर आज़म तुर्किया लाहौर में मैंने एक डिनर अरेंज किया, जहाँ पे राव अब्दुल रशीद जो MRD के बड़े लीडर थे, उन्होंने अपनी इस्तकबाली में ये कहा कि हमने तो आर्टिकल 6 रखा था कि फ़ौज ना आए, लेकिन फ़ौज फिर भी आ गई, ज़िया ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो जब बुलंद अजवत आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कभी फ़ौज आइन पढ़ कर आती है। तो इसलिए जो आइनी बातें हैं ये एतजाज़ एहसन करते हैं, महमूद अली कसूरी करते हैं, आवाम करते हैं। हुक्मरानी में आइन की क्या हैसियत है, ज़िया हक ने खुद कहा था कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। तो अब निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में बैठे हैं एक सेफ हाउस में, और उनको बैरूनी ताकतों की भी हमायत है और ताकत के मराकज़ जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी भी हमायत है। आसफ़ अली ज़रदारी भी उन पर मुतमिन है। आसफ़ अली ज़रदारी की फिर भी कोशिश होगी कि अगर कोई दाव लगे तो पीर साहब पगारों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाए। लेकिन अब अगले 10-11 दिन में एक नई हुकूमत होगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर नहीं आ सके और इमरान खान अंदर होंगे, और फिर निगरान वज़ीर आज़म आएगा और एक नई सियासी करवट होगी पाकिस्तान में। यकीनन जो भी हुकूमत जैसे भी आए, अगर ज़िया हक के साथ जनेजो आती हैं तो हुक्मरानी का एक नया दौर शुरू होता है। हमने देखा उन्हीं की छतरी में जनेजो साहब ने अपनी सियासत चमकाई और बड़ी शानदार सियासत की कि अगले 10-12 दिनों में एक ऐसे वज़ीर आज़म होंगे जो आलमी मालियाती अदारों के निगहबान हैं और पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ के पसंदीदा हैं, और आसफ़ अली ज़रदारी की कुर्बत में भी हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।